لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں، لیکن یہ کافی ہے. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس آن دا بیسس آف اسلام. یہ کائنات کس طریقے سے قائم ہوا اسلام کے نظریے سے. آج سائنس کیا کہتی ہے، پہلے وہ تذکرہ کروں گا میں. سائنس کہتی ہے کہ کائنات قائم ہوئی بائی بگ بینگ. پہلے یہ کائنات وہ تو پرائمری نیبولا ایک تھی، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد آئے گیلیکسیز، سٹارز، پلانٹس، سن، مون اور یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں بگ بینگ. اور اس کے لیے نوبل پرائز ملا تھا کچھ سائنٹسٹ کو 40-50 سال پہلے. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اس میں لکھا ہے ڈو ناٹ دا انبلیورز سی اولم یر الذین کفروا، کہ کافر لوگ نہیں جانتے، انبلیورز نہیں جانتے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ the heaven and the earth، یہ زمین اور آسمان ایک تھے اور اللہ نے انہیں سیپریٹ کیا، تفرقہ، انہیں چھٹا دیا، they separated. تو قرآن کی آیت جو ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 بگ بینگ ان اے نٹ شیل ہے. تو جس طریقے سے قرآن ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے، سائنس آج یعنی کل بول سکتے یسٹرڈے، 50 ایئرز بیک، 40 ایئرز بیک، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج سائنس مانتی ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئے. اور اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہے. میں نے ایک تقریر کیا ہوں قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، کنفلکٹ اور کنسیلیشن، اور اس میں ڈیٹیل میں سائنس کے بارے میں بات کیا ہوں کہ جو چیز سائنس آج جان رہی ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. کیونکہ قرآن از فار سپیریئر ٹو سائنس، کیونکہ قرآن کا لیکھک، آتھر، اس زمین کو بنانے والا ہے، وہ ہم سے، آپ سے اور ہم سے اور اچھا جانتا ہے. مائک نمبر 4 خواتین کے شعبے سے سوال کریں. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا، جب وہ کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور وہ مانتے خدا کے بیٹے ہیں، تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا ان تک پیغام پہنچائے. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بائبل میں بہت سے بیٹے اللہ کے، بائبل میں لکھا ہے آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا، اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا، ایفرائم اللہ کا بیٹا تھا. اینڈ بائبل میں لکھا ہے بک آف رومنز میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں all those who are led by the spirit of God they are sons of God. جو کوئی اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ ہے، اللہ میاں کی گائے ہے. تو اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سینس میں، اس سینس میں جس سینس میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اسی لیے اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس طریقے سے بائبل میں کئی اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے. لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم خصوصاً بیٹا ہے، ہی از دا بیگوٹن سن. اور وہ کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life.
बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है. क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा. बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड. बिगॉटन मतलब ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना. जन्ना किसे कहते? वो जन्ना जानवरों की चीज है. सेक्स, इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स. ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी. इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है. और ये लफ्ज जो बिगॉटन है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. ये revised standard version एक नया एडिशन है, रिवीजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया. ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन. इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लफ्ज बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज अ कंकॉक्शन, इज अ फैब्रिकेशन. वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया. तो अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लफ्ज बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद. सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है. तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए हैं. माइक नंबर 5 से सवाल करें. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार हैं, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है. कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज. अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो. तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए. कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है. लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है. ये साफ तौर पे लिखा है. अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल. मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है. शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है. तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स. कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है. अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है. कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है. तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से. देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो. कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स. कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है. क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं. मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं. कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है. कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का. अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है. ईसा अलैहिस्सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी. हम उनसे प्यार करते हैं,
मोहब्बत करते लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते, इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते, घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3 है, क्या 1 2 3, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है, सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। 1 नंबर माइक से सवाल करें अगर कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं तो। मैं गैर मुस्लिम राजेश पवार आपसे सवाल करना चाहता हूँ। इब्राहिम नबी ने भी हज किया है और मोहम्मद नबी ने भी हज किया है, क्या ईसा नबी ने भी हज किया है? मैंने अच्छा सवाल किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किए, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया? मैं खुद कोई आयत नहीं जानता हूं कुरान में जिसमें कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया, ना कोई डायरेक्ट रेफरेंस है बाइबल में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किए। लेकिन बाइबल में यह जिक्र है कि जो कोई मक्का की वादियां में जाता है उसके ऊपर सलामती रहती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने किए क्या नहीं मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये कहना कि सारे पैगंबरों ने हज किया कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। इस्लाम में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हज फर्ज है। अभी मुसलमान को अगर वो हैसियत रखता है माली हालत से या सेहत से कम 1 बार तो हज करना चाहिए, उसके लिए फर्ज है। क्वेश्चन 2 नंबर माइक से सवाल करें। मैं जैन शिंदे पिंपरी से आया हूं और मैं एक बजाज का वीआरएस लिए के एक पर्सन हूं, वीआरएस लिया हूं बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ये सवाल है, वचनों में ये जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको